اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتاؤں گا جس راز کو اگر میاں یا بیوی دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر عمل کرے گا تو کبھی بھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی کہانی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ جب یہ چیزیں میاں بیوی کی جو لڑائی ہے یہ ہر گھر میں ہوتی ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے کچھ چھوٹی سی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر ایک ہسبینڈ اور یہی چیز اگر ایک وائف بھی اپنا لے تو کبھی بھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی کہانی ہے، بہت سبق آموز کہانی ہے۔ میری بہن اور بھائی دونوں سے گزارش ہے کہ اس کو ایک مرتبہ ضرور سنیے گا۔ پچھلے 1 سال سے شادی کے بعد اب تک میرا بہت برا حال تھا۔ میری بیوی ایک پاگل ہے۔ کام سے تھکا مانے شام کو جب میں گھر آتا ہوں تو وہ پھٹ پھٹ کے رونے لگتی ہے، دہاڑے مار کے میرے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور مجھ سے سوالوں پر سوال کرتی ہے۔ میں نے جو چیز منگوائی تھی کیوں نہیں ساتھ لائے؟ یہ کیا ساری گندی چیزیں لے کے آگے ہو؟ خریداری کا تمہیں کوئی طریقہ نہیں آتا؟ آج جلدی کس لیے آئے ہو؟ شام سے صبح تک تمہیں برداشت کرنا ہوتا ہے، وہ کیا یہ کافی نہیں ہوتا؟ دوستوں کے مجبور کرنے پر بزرگ سے ملا اور اپنی ساری کہانی اس بزرگ کو سنا ڈالی۔ میں نے اس بزرگ کو اس طرح گویا بابا جی میں بہت صبر کیا، اب تو میں اپنی بیوی سے ہر بار یہ سوچتا ہوں کہ عذاب کی لعنت میں ایسی بد زبانی یا ایسا طعنہ بجا کہ جو مجھ میں نہ مارا۔ تیری بد زبانی اور بےہودگی نے میری زندگی کو جہنم بنا کے رکھ دیا۔ اس کی ایک بات کے جواب میں مجھے 2 سنانی پڑتی ہیں۔ اسے نہ قائل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی خاموش کیا جا سکتا ہے۔ کئی بار تو مجھے بار بار گھنٹوں میں حال میں گزرتے ہیں اور پھر گھر میں گزرنے کے لیے باقی کا جو وقت اپنے بال نوچتے یا ناخن چبانے میں گزر جاتا ہے۔ لیکن اب میری ایسی صورتحال ہو چکی ہے، دل بھر گیا ہے اور مجھے کراہٹ سی ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ پاگل عورت میرے ہاتھوں قتل ہو جائے یا میں اسے طلاق دے دوں، آپ مجھے کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں یا کوئی ایسا تعویذ مجھے دیں کہ میں اپنی بیوی کو آخری حد میں کنٹرول کر سکوں تاکہ یہ لڑائی اور یہ جھگڑے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ بزرگ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں تیری مصیبتوں کا سبب جان گیا ہوں، تیرے پاس اس کا علاج ہے اور اس سے تیرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں نے تعجب سے پوچھا، کیسا علاج؟ اس پاگل پن ختم ہو جائے، میں اسے رغبت باقی نہ رہے، اسے طلاق دے کے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس اس کا کوئی علاج ہے تو مجھے ضرور دیجیے گا۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ میرے کندھے پہ رکھے، بیٹا آؤ بھروسہ رکھو، اللہ پاک پہ بھروسہ رکھو، آؤ عصر کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، نماز پڑھتے ہیں، میں تمہیں تعویذ دوں گا، تمہیں علاج بتاؤں گا۔ نماز سے واپسی پر مجھے واپس بیٹھنے کا اشارہ کرتے بزرگ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ واپسی پر ایک چھوٹی سی بوتل تھمائے نمودار ہوئے۔ بوتل کا منہ ایک ڈھکن سے مضبوطی سے کے ساتھ بند تھا۔ میرے قریب بیٹھتے ہوئے مجھے مخاطب ہوئے، یہ لو میرے بیٹے، یہ وہ علاج ہے جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ اس علاج کو تم اپنے پاس رکھنا، جب گھر لوٹو تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بوتل میں ایک ڈھکنا بھر کے منہ میں ڈال دینا، پھر اسے آدھا گھنٹے تک حلق میں ہی رکھنا اور نہ ہی اس کو پینا اور نہ ہی اس کو تھوکنا۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ علاج مسلسل بلا ناغہ 10 دن تک کرو، اور 10 دن کے بعد اللہ کے حکم سے تمہاری بیوی ویسی ہی بن جائے گی جیسا تم
ख्वाहिश रखते हो। मैंने सर को हैरान के साथ उस बुज़ुर्ग की बात मान ली। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा जैसा आप हुक्म देती हैं। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है मेरी बीवी के पागलपन को इस दुआ से शिफा हो जाए। आप जैसा चाहते हैं मैं वैसे ही करूँगा। और दूसरे दिन घर में दाखिल होते साथ ही मैंने जेब से बोतल निकाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मैंने उसमें से एक चम्मच पानी का निकाल के अपने मुंह में रख दिया। आपकी मालूमात की खातिर अर्ज़ कर देता हूँ, ये जानकर हैरत ज़दा हो गया कि साइल जायका पानी से ज़्यादा दूर नहीं था। न कोई रंग था, न कोई बदबू थी, न कोई तर्श था। ये एक आम पानी जैसा था। बुज़ुर्ग की हदायत के मुताबिक अमल करते हुए मुंह को सख्ती के साथ बंद किया। घर में दाखिल हुआ। कमरे में जाने के लिए किचन के सामने से गुज़रता गुज़रता चला गया। मेरी बीवी की दूर से मुझ पर नज़र पड़ गई। हस्ब तौफीक दाएं आंख ऊपर और बाएं नीचे किए हुए। अब इससे पहले कि मैं सामने से हटता दांतों को पीसते हुए बोली, आखिरकार आ ही गए हो। आप जनाब लाए किधर वो चीज़ जो मैंने मंगवाई थी? हमेशा के लिए मेरे ही दिमाग खाते रहोगे या मुझसे लड़ाई करते रहोगे? और वो चीज़ लाई या नहीं लाई? फिर मैंने खामोश होकर के उसके चेहरे को देखा। एक उंगली को इशारा करते हुए चुप करके और मैं कमरे में चला गया। मौका मिलते ही मैं कमरे की तरफ जैसे ही दौड़ा ताकि जाके अपना इलाज का आधा घंटा गुजार सकूं। हालांकि मुझे पूरा यकीन था कि बुज़ुर्ग के इलाज का मेरी बीवी पे कोई असर नहीं होना, लेकिन वो 10 दिन मैंने पूरे करने थे और इसका अमल देखना था कि इसका रिज़ल्ट क्या होता है। दूसरे दिन गुजर गया और दूसरे दिन फिर वैसा ही इलाज दोहराया। बोतल में ढकने से बड़ा महलूल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के घर में दाखिल हो गया। फिर वैसा ही किया। मेरी बीवी अपने दोबारा से उसने यही अमल दोहराया और मैंने होंठ सख्ती के साथ बंद किए इलाज करता रहा। आई ज़रा हैरियत रही। घर वालों को देखता रहा। खामोशी का सबब पूछने की जानने की कोशिश की। चंद लम्हे खामोश रह करके आहिस्तगी से बोला, खाना खाओगे क्या मैं लाऊं? और फिर 5 दिनों के बाद बुज़ुर्ग के पास बैठने से कबल मैंने इसे सलाम किया और पूछा, बोतल में क्या डाला था? बुज़ुर्ग मेरे चेहरे को देख करके मुस्कुराए और बोले, बेटा पहले तुम अपनी सुनाओ। मेरे इलाज में कोई असर भी दिखाई दे रहा है या नहीं? मैंने अपना सर ऊपर से नीचे की जानब हिलाते हुए कहा कि अब सूरत हाल बहुत तब्दील हो चुकी है। बुज़ुर्ग बोलने से पहले कहीं का लगाते हंस पड़े और बोले, इस बोतल में जो मैंने तुम्हें पानी दिया था वो एक आम गड़े से ला के दिया था और इस पे मैंने कोई भी नहीं पड़ा था। ये एक आम दुआ थी और एक आम पानी था। बुज़ुर्ग एक बार फिर मुस्कुराए और बताया कि बेटा तुम्हारा मसला ये था कि पहले सारे दिन के काम के बाद शाम को जब तुम थके हारे घर जाते हो तो तुम्हें सुकून और आराम होता है बग़ैर किसी इजाफी काम या मुशक्क़त के। दूसरा, तुम्हारी बीवी सारे दिन की तन्हाई, खामोशी और उकताहट का शिकार थी। तुम्हारे घर पहुंचने पे तुमसे बातें करना चाहती थी मगर गुफ्तगू को शुरू करने के लिए कोई मुनासिब मौका न मिला। वो फजूल और इल्ज़ाम तराशी पर उतर आती थी और इस सारी ख़राबियों में तुम्हारा किरदार ये था कि तुम उस पर गुस्सा होते थे, इल्ज़ाम बाजी में तहम्मुल का मुज़ाहरा नहीं करते थे। इस रवैये को नज़रअंदाज करना तो दरकिनार उल्टा तुम तलाक देने की सोच रहे थे। बेटा हो ना तो ये चाहते हो तुम खामोश रह करके अपनी बीवी की बातें सुनते, इसकी दिलजोई करते, सारे दिन के इसकी फरियाद सुनते, या फिर इसको अपने सीने की बड़कास निकालने का मौका। फिर ये महज तुम्हारी खामोशी ही इसका इलाज थी। तुम्हारे मर्ज़ की कैफियत
को जहन में रख के मैंने जो इलाज तुम्हें बताया बोतल में बंद करके तुम्हें दे दिया था। वो महज मेरे घर के गड़े का पानी था ताकि जब तक कुछ आराम पाके तुम्हारा मूड ठीक ना हो इस वक्त तक पानी मुंह में रख कर कम अज कम तुम्हारे होंठ तो सिले रहेंगे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ तुम इतना सा ही खामोश रहना सीख लो जितनी देर तुम्हारी बीवी बगैर किसी रोक टोक के तुम्हें कुछ सुना नहीं देती, अपने दिल का बोझ तुम पे हल्का नहीं कर देती, अपने दिल की बड़कास तुम पर निकाल नहीं देती, तब तक तुम खामोश ही रहते। अगर तुम इतना ही खामोश रह लेते, इस तरह उसके दिल में ये बात बैठ सकती थी कि तुम जो कर रहे हो इसकी मोहब्बत के लिए कर रहे हो, और रद्द-ए-अमल के तौर पे वो भी ऐसा रवैया अपनाए जो तुम्हारे दिल की आज़ारी का बायस ना बने। बेटे, तुम्हारी बीवी का इलाज तुम्हारी तरफ से शुरू होना था, जिसकी मैंने तुम्हें इब्तदाई दुआ दे दी, और इस इलाज में यही बात तुम्हें समझाना चाह रहा था। तुम्हारी बीवी की दुआ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खामोशी थी। ये एक ऐसा अमल है, अगर तुम खामोश रहते तो तुम्हारा सारा अमल जो है वो ठीक हो जाता। मैंने भी उस बुज़ुर्ग से कहा कि वाकई अब मेरी बीवी वैसा ही थी जैसा शादी के पहले दिन। अब उसका रवैया मेरे साथ बहुत ज़्यादा तब्दील हो गया, उसकी दिल में मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई और वो बहुत ज़्यादा मुझे चाहने लगी है। हमारे घर का सारा सेटअप अब ठीक हो चुका है। आपकी कीमती मशवरा, आप बेशक बहुत अच्छे मुकर्रर, बहुत अच्छी गुफ्तगू का फ़न रखते होंगे, मगर दूसरों को बोलने का मौका दीजिए, शायद आपको इस तरह कुछ फ़ायदा पहुँचते ही, वरना कम अज़ कम आपकी समाज से बोलने वाला इज़्ज़त अफ़ज़ाई तो ज़रूर ही महसूस करेगा। और कुछ गुफ्तगू के अदब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी तालीमात दी हैं। आज की इस तहकीक से हमें ये पता चला है कि बीवी के साथ तकरार दिल के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, लिहाजा इससे बचने की कोशिश करें और पंगा ना लिया करें। अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल इस्लामिक टीचर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर हमारी ये बात आपको पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।